پھر نارووال سپورٹ سٹی کی تاریخ پہ میں پیش ہوا ہوں۔ یہ وہ کیسز ہیں جو انتقام اور جھوٹ کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں اور پورے ریفرنس میں ایک پیسے کی مالی کرپشن کا ذکر نہیں ہے، لیکن گناہ یہ ہے کہ پاکستان میں کھیلوں کا جدید ترین مرکز کیوں بنایا تھا، اور اب اس پروجیکٹ کی پچھلے 3 سالوں میں جو حالت کر دی گئی ہے کہ 2.5 ارب روپیہ وہاں لگ چکا ہے، 90% پروجیکٹ مکمل تھا۔ اس حکومت نے اس پروجیکٹ کو فنڈنگ روک کے کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے اور کروڑوں روپے کی ٹرفز جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق وہاں تنصیب کرنے کے لیے منگائی گئی تھیں، انہیں وارنٹی ختم کر کے تلف ضائع کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ٹیکس پیئر کا نقصان ہوا ہے، دراصل اس کے اوپر نیب کا کیس بنتا ہے۔ نارووال سپورٹ سٹی نے، اس منصوبے نے تمام حکومت کے پروٹوکولز کو، ضابطوں کو پورا کیا ہے۔ PC1 بنا، CTWP نے اس کی منظوری دی، پیپرا رولز کے مطابق متعلقہ وزارت نے ٹینڈرنگ کی اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ مکمل ہوا۔ اس کے بجٹ کی منظوری کابینہ نے دی، قومی اسمبلی نے دی، نیشنل اکنامک کونسل نے دی، لیکن اسی ضلع میں ایک اور منصوبہ جو کہ ایک قومی منصوبہ ہے، ہم اس منصوبے کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس منصوبے کے لیے نہ PC1 بنا، نہ CTWP سے منظوری لی گئی، نہ ایکنک سے منظوری لی گئی، اور نہ ہی پیپرا رول کے مطابق اس کی بڈنگ کی گئی، اور سنگل سورس پہ کرتارپور منصوبہ 17 ارب روپے کا بنا دیا گیا ہے، اور اب آ کے کابینہ سے ایکس پوسٹ فیکٹو اپروولز لی جا رہی ہیں، یعنی کہ بعد از بسیار اب کہا جا رہا ہے تمام فورم سے کہ اس منصوبے کی منظوری دیں آپ۔ تو آپ مجھے بتائیے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف وہ منصوبہ جس کے لیے تمام ضابطے کی کارروائیاں مکمل ہیں، اس پر میں جیل کاٹ آیا ہوں، اس پر میں ہر ہفتے پیشیاں بھگت رہا ہوں، اور ایک وہ منصوبہ جہاں اس کے مقابلے میں تقریباً 6 سے 7 گنا زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے، کوئی ضابطہ پورا نہیں ہوا اور اس کے لیے کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ اسی طرح جنرل عاصم باجوہ کے حوالے سے، ان کے ذاتی معاملات کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے۔ یہاں سپریم کورٹ کا جج جواب دہ ہے، یہاں پہ سابق وزیر اعظم جواب دہ ہے، یہاں پہ سابق وزیر داخلہ جواب دہ ہے، ہم جیلیں بھگت رہے ہیں، ہم عدالت کی پیشیاں بھگت رہے ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ یہ 2 پاکستان نہیں ہے، لگتا ہے کہ 10 مختلف پاکستان ہیں جن پہ چل رہے ہیں۔ ہماری بھی عزت ہے، ہماری بھی ڈگنیٹی ہے، لیکن پاکستان کے سیاستدانوں کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کردار کشی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے خلاف جھوٹی مہم چلائی جاتی ہے، جھوٹے مقدمے قائم کیے جاتے ہیں۔ میں عمران نیازی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو شہزاد اکبر کاغذ لہراتا تھا شہباز شریف صاحب کے خلاف، وہ عدالت میں کیوں نہیں پیش کیے؟ عدالت نے تو ان کاغذوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور 3 ججوں نے متفقہ بیل گرانٹ کی۔ یہ منہ پہ تماچا ہے اس نام نہاد احتساب کے اوپر، جس کی بدولت 7 مہینے شہباز شریف صاحب کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا۔ اور میں آج پھر عمران نیازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، یہ نارووال سپورٹ سٹی
को छोड़ो, ये 2.9 अरब रुपए का मंसूबा है। मेरी वजारत ने 5 सालों में 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट की निगरानी की है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट 11वें 5 साला मंसूबे के जरिए 3200 अरब रुपया हमने खर्च किया है। इमरान नियाजी, अपनी सारी एजेंसियां लगा लो, अपनी सारी हुकूमत के वसाइल लगा लो, और अगर तुम 32 पैसे भी ज़ाती फ़ायदा उसमें से साबित कर सकोगे तो मैं तुम्हारा नहीं, कौम का मुजरिम होगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह दियानतदारी के साथ इस मुल्क की खिदमत की है, इस मुल्क में तरक्की के पहिए को चलाया है, और आज आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़ियादत में जो तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए हैं उनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आज पीटीआई वाले और हमारे मुखालिफ भी उन्हीं मोटरवेज से फ़ायदा उठाते हैं। आज मुस्लिम लीग नून के दौर की पैदा की हुई बिजली से हमारे मुखालफीन के घरों में रोशनी होती है, उनके कारोबार चलते हैं। हमें फ़ख्र है कि हमने पाकिस्तान के अंधेरे दूर किए थे। हमें फ़ख्र है कि हमने सी पैक जैसे मंसूबे को एक ख्वाब से निकाल के 29 अरब डॉलर ज़मीन के ऊपर लगाए 4 साल के कलील अरसे के अंदर। हमें फ़ख्र है कि हमने मुल्क में कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन पैदा किया, हज़ारों किलोमीटर के मोटरवेज, हाईवेज बनाए। हमें फ़ख्र है कि हमने जदीद तरीन फाइबर ऑप्टिक केबल चाइना से ला के इंफॉर्मेशन हाईवे भी बनाया। हमें फ़ख्र है कि हमने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हायर एजुकेशन में एक्सपेंशन की और नई यूनिवर्सिटियां खोली। इमरान नियाजी साहब, आप कहते हैं मुझे 2.5 सालों पे फ़ख्र है। आप बताइए 2.5 सालों में आपने क्या किया है? पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा कर्जों का बोझ लादा है। 2.5 सालों में आपने पाकिस्तान की तरक्की की सबसे बड़ा क्रैश किया है। 5.8 से -4, तकरीबन 6% क्रैश 2 सालों में कभी तारीख में नहीं हुआ। आपके दौर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हुई है। आपके दौर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्बत फैली है। आपके दौर में तारीख की सबसे बड़ी महंगाई अवाम के ऊपर टूटी है। आपके दौर में तारीख की सबसे ज़्यादा करप्शन पाकिस्तान में देखने में आई है। आप कहते हैं कि 2.5 सालों में हमने बहुत तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। यकीनन आपकी कारकर्दगी तारीखी है, लेकिन ये तरक्की की तारीखी कारकर्दगी नहीं है, ये तबाही बर्बादी की तारीखी कारकर्दगी है। पंजाब में आप कहते हैं कि मैंने वसीम अकरम प्लस दिया है। आज पंजाब की ये हालत है कि वज़ीर आला हाउस से लेके पटवार खाने तक पूरी इंतज़ामिया दोनों हाथों से पैसे बनाने पे लगी हुई है। करप्शन के वो रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं कि जो कभी किसी के ख्वाब में भी लोगों को नजर नहीं आते थे। आज एक आम आदमी अपने मकान या जायदाद की फर्द लेने के लिए मजबूर है कि लाखों रुपया रिश्वत दे। एक आम आदमी अपना केस रजिस्टर करने के लिए रिश्वत के लिए मजबूर है। एक आम आदमी अपना बुनियादी हक हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो रिश्वत इंतज़ामिया को ना दे। आज पंजाब में रिश्वत गर्दी का वो मेयार है कि जिसकी खुद पीटीआई के मेंबर कहते हैं कि हमने तारीख में कभी इतनी करप्शन नहीं देखी। तो आप किस कारकर्दगी की बात करते हैं? पंजाब की सड़कें तबाह हो रही हैं,
पंजाब के स्कूल तबाह हो रहे हैं, पंजाब के अस्पताल तबाह हो रहे हैं, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, पंजाब की गवर्नेंस तबाह कर दी है आपने। 6 आईजी, 5 चीफ सेक्रेटरी, 11 सेक्रेटरी बदल रहे हैं, 6 कमिश्नर बदल रहे हैं, 10 डिप्टी कमिश्नर बदल रहे हैं। इस तरह हुकूमतें चलती हैं। आज हालत ये है कि ये मास्क पहनने के लिए भी आपको फौज की जरूरत पड़ रही है। कहाँ है सिविल इंतजामिया? आपने इमरान नियाजी पाकिस्तान के सिविल इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये वही सिविल इदारे हैं जो हमारे ज़माने में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते थे। हर चैलेंज में, चाहे कोई सैलाब आया, चाहे कोई रिलीफ वर्क देना था, चाहे तालीम और सेहत के शोबे को चलाना था, चाहे CPEC पे अमल दरामद करना था, पाकिस्तान के सिविल इदारों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। लेकिन आपने अफसरों पे झूठे मुकदमे बना के, आपने अफसरों को हरासा कर करके, आपने नालायक और वो नाकारा अफसरान के जिनको हमने साइड लाइन किया था, उनको दोबारा कलीदी ओहदों पे लगा के सिविल सर्विस का मोराल ख़त्म कर दिया है। आज पाकिस्तान की सिविल सर्विस हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है, इसलिए कि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है। आपने मुल्क की गवर्नेंस को तबाह और बर्बाद कर दिया है। जिस मुल्क में इंतज़ामी इदारे मफलूज हो जाएं, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपने नैब गर्दी के ज़रिए जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो तबाह कर दी है। पैसा भाग रहा है, जहाँ से पैसा भाग जाए वो मईशत नहीं चल सकती। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस 2.5 साल के अजाब को मज़ीद कौम पे मुसल्लत रखने की बजाय अपनी बेचारगी, अपनी नालायकी, अपनी नाकामी को तस्लीम करें और वापस जाएं। शौकत खानम अस्पताल को आपकी ज़रूरत है, उसके लिए चंदा इकट्ठा करें। आप चंदा ही इकट्ठा कर सकते हैं, हुकूमत चलाना आपके बस की बात नहीं। इकबाल साहब, आपने तो कहा कि वापस जाएं, लेकिन कल मरीम नवाज साहिबा का एक बयान इंटरव्यू के हवाले से सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आप ये गवर्नमेंट 5 साल पूरी करें। तो नॉन लीग की इस वक्त असल स्टैंडिंग है क्या? गवर्नमेंट पूरी देखिए, वो हुकूमत के हवाले से हमने हमेशा ये कहा है कि ये मुल्क के लिए एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है, और जितनी देर ये हुकूमत रहेगी उतना पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का वो बोझ पड़ेगा जिसके एवज कोई पैदावारी सलाहियत नहीं पैदा हो रही। ये डेड लोन्स हैं जो खसारा पूरा करने के लिए लिए जा रहे हैं। लिहाजा इस हुकूमत से जल्द अज जल्द निजात ही पाकिस्तान के मफाद में है, और मुस्लिम लीग नून और PDM कमिटेड हैं कि इस हुकूमत को जल्द से जल्द घर भेजा जाए ताकि पाकिस्तान बचाया जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।